आइए मेहरबान सुनिए कदरदान, द मोस्ट अवेटेड व्लॉग कोपेनहेगन जाने का ट्रांजिट मेरा पेरिस का था। पेरिस की एयरपोर्ट तो मेरे पे फर्स्ट इंप्रेशन इतनी अच्छी नहीं की थी, लास्ट इंप्रेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट एनीवेज ट्रांजिट होते होते मैं पेरिस से गई हूँ डेनमार्क कोपेनहेगन, एंड दिस इज़ कोपेनहेगन व्यू। ये स्वीडन ब्रिज है, आई थिंक ओरेसो ब्रिज कुछ है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती भाई, लेकिन ये ब्रिज पे जाना मेरा टारगेट था क्योंकि मैंने एक लोकल को मिली थी एयरप्लेन में, एंड ही टोल्ड मी अबाउट ऑल द जेम्स एंड हिडन जेम्स ऑफ कोपेनहेगन, एंड आई वांटेड टू गो टू द स्वीडन ब्रिज एंड आई डिड। तो माय रेडी कार, आई एम गोइंग नाउ। नहीं, नाउ तो नहीं जा रही हूँ मैं जाऊँगी अभी। मैं लैंड हुई हूँ दोपहर के टाइम पे कोपेनहेगन, एंड थोड़ा चिल मारूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट दिन रेडी हो गया, रेडी शेडी हो गया है शिफा भाई। हाँ, शिफा भाई रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं, कहीं हलाल अच्छा फूड मिल जाए। तो मैंने सोचा कि भाई अंडा ही खा लेते हैं, हलाल के चक्करों से बच जाएंगे। एंड हर चीज़ वीगन था वहाँ पर। सिटी में गई, मैंने गाड़ी पार्क किया। पार्किंग एरियाज होते हैं, कोपेनहेगन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। देर इज़ पार्किंग एरिया इन कोपेनहेगन, यू कैन पार्क देर पर आवर के हिसाब से। एंड इसके बाद माई फर्स्ट टूर वाज द कैनाल टूर, द बोट राइड टूर। मैंने इतनी सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये करूँगी। एक बोट टूर कवर्ड एवरीथिंग, द लिटिल मरमेड, दिस दैट एवरीथिंग। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप ये कैनाल टूर जो है गेट योर गाइड से, ऐप से बुक कर लीजिए। एंड ऑन टाइम रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम चलने नहीं वाला, आपको 15 मिनट पहले रहना चाहिए, सो दैट एवरीथिंग गोज स्मूथली। All right, and our tour guide was beautiful, charming and humorous. मैं अलाउ करूँगी कि आप उसकी बातें सुनो अब पूरे टूर पर, एंड मैं बाद में बकबक करूँगी। ऑल राइट, आप देखें पूरा। रुको रुको, एक चीज़ भूल गई मैं, यहाँ पर फ्री में इस तरह के कयाक मिल जाएंगे। शर्त बस इतनी है कि आप वहाँ का कचरा उठाए, बस दैट्स ऑल। अभी हमारी टूर गाइड बातें करेंगी, आप चुपचाप सुनेगा। ओके So on your left-hand side here, this is the torpedo hull. Now this is where they used to build and repair, torpedo boats. As you may notice, you could sail all the way in, so that was actually very convenient that time. Today, it's been modernized it's been transformed to some modern apartments. It's also a perfect example about here in Copenhagen how they really like to preserve old buildings and reuse them so that we can still keep the history alive. On your right-hand side, this is the back side of Christiania. I don't know how much you guys know about it. In the 1970s, it kind of got taken over by hippies. And they actually kind of created their own independent city within the city. So they had their own garbage system, they had their own kindergartens, they had their own culture events. But it's also very known for a place to go when you want to, get a little... 37. The English had actually conquered large part of the Danish fleet, so we only had these cannon boats left to kind of defend ourselves. You may notice how they kind of lean all the way into the water. Like not only is it sort of a hill, it's actually one of the world's most modern power source plants. So it actually burns around 530,000 tons of waste every year, and converts it to electricity and heating to over 100,000 different households in the city. Not only that, there's also a ski hill, so you can actually... It was a museum after, but still, it had a little oopsie situation. Between the submarine and the flagship, you can see this crane here. This is a mast crane. Now, this was built in 1752, and it's built only on wood and rope, so that means that there was no nails or no screws at all. And this gave it a lot of flexibility when it had to lift the heavy masts onto the wooden ships. It could lift around 20 tons and 40 meters height. On your right hand side, we have the Royal Yacht here, and we're actually very lucky to get a glimpse of it today because it's not always here. This is actually one of the oldest royal yachts that are still in use today in the whole world. It was actually built here in this home area back in 1931, and it's actually named after our Danish flag, Dannebrog. The yacht. Very nice. So, that's about all the time. My mom actually works on the other plane here, this boat plane.
believe it's called a boat or water plane. And this one goes all the way to Aarhus. Usually it takes around 4 hours. So yes, so here is the Little Mermaid, and she's been sitting here on her rock since 1913. She was a gift by Carl Jacobsen, who wrote the book. He fell in love with this ballerina on this ballet performance and insisted on getting a sculpture built of her. So she's been sitting there ever since. She's actually also been vandalized over the years. She's been decapitated twice. She's also gotten her arm sawn off. And she's had paint thrown at her several times. But we always clean her and fix her up so she can welcome you all. She's also one of the world's most disappointing tourist attractions. I don't know if you know that. Beautiful picture of the royal yachts, and you're going to get a picture. And also with the royal yachts, this is where they stand and wait. And then another little boat comes and picks them up and brings them there. The royal family gets to be in the beautiful one with the crown, and if they have guests with them, they get to be in the one with the golden onion. I don't know why it's called an onion, and it feels a little insulting, not gonna lie. Oh. And was actually a gift by Adrian Villa, who is the founder of MASP. It consists of 14 floors, 5 of which are actually below the water. There's also 2 auditoriums, with the main one seating up to 1,700 guests. The auditorium itself is kind of shaped in... It's so pretty. So pretty. So pretty and pretty. The Lego Man. To the top, there's 400 steps. So if you want to get your 9,000 steps in, this is a... बाइक राइड तो मैंने कर ली, मेरी टोपी उड़ गई. सॉरी, बाइक राइड बोल रही हूँ, बोट राइड मैंने कर ली. ये वाली बोट है, पहले ही बुक करके आना चाहिए, टूरिस्ट टाइम में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है. एंड मेरी टोपी उड़ गई विंड में. अब मैं पूरा दिन साइकिल कैसे चलाऊंगी हैं. अभी साइकिल रेंट कर रही हूँ. आई विल गो टू एमलेनबर्ग. प्रोनाउंसिएशन में बाद में देख लूँगी. एमलेनबर्ग पैलेस, बिकॉज 12 बजे गार्ड्स चेंज होने वाले हैं. सही है. ऑलराइट, शी यू, बाय बाय. वहाँ से रिपोर्ट करती हूँ. जैसे तैसे हाथ पैर मार के मैं वहाँ पहुँची हूँ, गाड़ी वाड़ी पार्क करके, ब्रेकफास्ट करके, बोट में जाके, उसके बाद मैं साइकिल हायर करके आधे घंटे पहले पहुँची मैं एमिलियनबर्ग पे. मैंने सोचा क्या ही हो जाएगा और कितने ही लोग आ जाएंगे. आखिर के 10 मिनट जो थे ना वहाँ पे, 12 बजने के करीब करीब, यार लोग ऐसे गर्दी मचा दी है वहाँ पे कि मैं सोच रही थी कि फर्स्ट रो पे तो मुझे खड़े होने मिल ही जाएगा, फिर नहीं मिला. बट मेरी नसीब देखो, जहाँ मैं खड़ी हुई थी पुलिस ऑफिसर ने वहाँ से पैसेज खुलवाया, एंड आई वाज इन द फर्स्ट रो एंड आई कुड सी देम मार्च. इन लोग अपनी ड्यूटी चेंज होती है 12 बजे के टाइम पे यहाँ के रॉयल पैलेस में, और ये हमको नज़ारा देखने को मिलता है. इट वाज अमेजिंग. उसके बाद मैं बाइक नहीं, इसको क्या कहते हैं, साइकिल, वहाँ पे बाइक बोलते हैं, बाइसिकल पे निकली क्रिस्टियाना, जो यहाँ का फ्री टाउन है. सारे हिप्पीज़, यानी कि क्या बोलते हैं, हिप्पीज़ तो पता ही होगा ना आप लोगों को. हाँ, उन लोगों का टाउन है. अभी आप मेरी बड़बड़ वीडियो में जो है वो सुनो. हिप्पीज़ ने बनाया हुआ, इनको इनका स्कूल है, इनको इनका सिस्टम है. दे डोंट क्या कहते हैं, इन लोगों का एक खुद का ही एक अपना नेशन बना दिया. आई थिंक इन लोगों का फ्लैग भी है, सब कुछ है. तो पूरे डिटेल्स नहीं मालूम, गूगल पे पढ़ लो, क्रिस्टियाना फ्री टाउन करके, कोपेनहेगन में ही, कोपेनहेगन में ही हाँ ठीक है. तो ये देखो, यहाँ पे पूरी ग्राफिटी शाफिटी, और ये टाउन ही अलग है. ओह इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक साइकिलिंग में कोई चीज़ करना हो आपको तो कोपेनहेगन ही आओ. इट्स अ साइकिलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सीरियसली, यहाँ पे साइकिलिंग के लिए इतना मतलब प्रोविजन बनाया गया है कि आई थिंक गाड़ियों के लिए भी इतना नहीं है. वॉकर्स, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए, और साइकिलिंग के लिए. ओह रियली नाइस. ओह सी हाउ प्रिटी, सी हाउ प्रिटी. इंस्टा 360 लेके भी बना रही हूँ मोबाइल से वीडियो, बट कर क्या जाने अदरक का स्वाद. चलो लगती हूँ अभी मैं थोड़ा एंजॉय करूँगी, इधर देखूँगी.
तुम लोग से बातें करते रहूंगी तो है ना, नजरें इधर इधर नहीं रहती। और साइकिल भी चला रही हूँ ना ब्रो। बाय गाइस। ये क्रिस्टेनिया जगह जो है वो थोड़ा डेंजरस टाइप है, यहाँ पे लुटेरे वुटेरे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अपन भी एकदम रिस्क लेके चला गया भाई साइकिल वाइकिल चलाते हुए। वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड है नहीं, फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, एंड वहाँ पे ड्रग्स वग्स थोड़ा लीगल टाइप है, ऐसा है। और ये कोपेनहेगन में मैंने, उसके बाद में कोपेनहेगन से मैं चली गई स्वीडन गाड़ी लेकर। एक जो मैं पहले शुरुआत में आपको दिखा रही थी ना, ब्रिज पास हो रहा है स्वीडन का कोपेनहेगन से, पानी के अंडर, एकदम अंडर मंडर, वहाँ से एक टिकट लेके आपको जाना होता है टू स्वीडन। और स्वीडन एंटर होते होते मैंने क्या देखा आप अभी देखेंगे, देखते रहिएगा, जस्ट सी, वेट एंड वॉच। भाई स्वीडन एंटर करते करते स्वीडिश फ्लैग नहीं दिखाई दिया है मेरे को, आई क्या दिखाई दिया है, आई क्या यार ये स्वीडिश ब्रिज फ्रॉम कोपेनहेगन डेनमार्क टू स्वीडन आने के लिए मैंने कार लिया हुआ था, और यहाँ देखो कौवे दिख गए मेरे को। हमारे कौवे हर जगह रहते हैं भाई, इंडियंस और इंडिया के कौवे हर जगह है तो मैं स्वीडन में यहाँ पर आई थी स्क्वायर में स्पेशली हलाल फूड के लिए। तो वहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया मुझे, एंड ही वाज शोइंग ऑफ हिज व्हाट यू से क्लासिक कार कलेक्शंस। ये 2003 से है, एंड ही इज़ मेंटेन्ड इट सो वेल। ही वाज सो एक्साइटेड टू शो इट ऑफ कि भाई ऐसा वैसा ये वो, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी इट एज वेल। तो हम फ्रेंड्स बन गए वहाँ पर बिकॉज ऑफ गाड़ी एंड घोड़ा दोनों का इंटरेस्ट मैच हो रहा था। तो हम लोग बातें करने लग गए ड्यूरिंग लंच, एंड दैट्स हाउ आई मेड अ फ्रेंड आउट देयर। And he's Iraqi and he loves cars and horses. I wish I could see the horses, but मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे वापस डेनमार्क जाना था। तो he did all the convertible thing and showed me. The best part is पुरानी गाड़ियों को जब आप मेंटेन रखते हो और इस तरह चकाचक रखते हो, वो दिल ज़्यादा ले लेती है यार नए गाड़ियों से, है ना। सो दैट्स अबाउट इट। इसके बाद में रात होती आ रही थी। बाय द वे यहाँ पर जो सनसेट है ना वो काफ़ी लेट है एज यू गाइज नो। तो अभी देखो ऑलमोस्ट 6 बजे है, लेकिन सन एकदम ऊपर ही है। तो मैं अभी प्लान कर रही हूँ वापस डेनमार्क जाने का, क्योंकि डिनर मुझे डेनमार्क में करना था। तो ये सारी गाड़ी वाड़ी देख ली मैंने, दोस्त वोस्त बना लिए, बातें शातें किए, और उसके बाद में मेरा पूरा प्लान बन रहा है कि अब मैं वापस डेनमार्क जाऊँगी फ्रॉम द ब्रिज, क्योंकि मेरा होटल जो है वो कोपेनहेगन और डेनमार्क में ही है। तो आई हैव टू गो बैक। उसके बाद में मैं तिवोली गार्डन्स जाना चाहती थी, वहाँ का फेमस है। तो बाय 7 o'clock मैं तिवोली गार्डन पहुँच गई। और ये तिवोली गार्डन कैसा है पता है, अपने बॉम्बे में एसएल वर्ड कैसा रहता है वैसा टाइप का, लेकिन दिस इज़ मच मोर रॉयल, प्रिटी, वेल मेंटेन्ड, बेटर। ओके, तो तिवोली गार्डन्स में तो मैंने जो रज के मज़े क्यों ना भाई, रोलर कोस्टर पे, ये झूले पे, वो झूले पे, अयो और यहाँ पे थिएटर चल रहा था। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन थिएटर, मैंने कभी देखा नहीं है, आई रियली डोंट नो, बट व्हेन आई स्टॉप्ड देयर एंड आई वॉच्ड, हैव अ लुक, हैव अ लुक। इसके बाजू में यानी इसी के अंदर तिवोली गार्डन्स के अंदर ये एक कैसल था। इट वाज लाइक कमिंग आउट फ्रॉम फेरी टेल, यानी आप फेरी टेल देख रहे हो ऐसे लग रहा था। उसके बाद में तिवोली गार्डन्स में एक ऐसा गार्डन टाइप एरिया भी उन्होंने खाली रखा है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं। मैंने कॉन्सर्ट की पूरी एंट्री ले ली थी, बट बाद में मेरे अंदर दम नहीं था भाई जाने का रात में। ये देखो, इसका तो नाम का तेल बिकता है हमारे इधर फिगारो का तो झूले में बैठी मैं, ये वाले झूले में भी बैठी। देखो मुझे पता है इस अम्यूज़मेंट पार्क में कुछ वाव टाइप का आपको लग नहीं रहा है कि झूला ऐसा है वैसा है, दुबई का फरारी की तरह 360 ऐसा है वैसा है, नो, बट दिस इज़ अ मस्ट विजिट बिकॉज it is pretty royal, and like it is royal के अलावा it is like it's coming out of a fairy tale. The way they have maintained it, the cleanliness, the look of it, it was amazing. The shops also वहाँ पर ऐसे थे कि भाई फेरी टेल से निकले हुए लोग भी, और यू नो क्या कहते हैं, शॉप्स भी। और ये देखो, ये कितनी जगह हम लोगों ने देखा है ये वाला थीम पार्क में, बट ये झूले का स्टाइल देखो, हाउ इट्स डिज़ाइन, आई रियली लव्ड इट। रोलर कोस्टर में भी बैठा हमने भाई साहब, रोलर कोस्टर में हमारा फोटो निकालने वाला कोई नहीं था, और वहाँ पे जो लोग बेचते फ़ोटो उसमें तो मैं एक गाड़ी रेंट कर लूँ भाई तो सारे ही ऑलमोस्ट मैंने 3-4 झूलों में बैठी। देन आई हैड टू गो एंड गिव बैक माई कार, सो आई वॉज लाइक चलो इतना हो गया खलास ख़त्म। वैसे भी मैं थकी हारी थी, क्योंकि सुबह 5:30 उठी थी और मैं गेड़ियाँ मार रही थी। कोपेनहेगन सारा घूमी, उससे फिर डेनमार्क से यहाँ जाकर आई, क्या कहते हैं, स्वीडन जाके आई। स्वीडन में लंच वंच किया, फ्रेंड्स बनाया, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माई डे। टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।